Hello everyone. So the next two scholars we will read as a part of classical evolutionism are Henry James Summermain and John Ferguson McLennan. ये दोनों scholars syllabus में directly mention नहीं है, but they also give quite significant contribution to the school of classical anthropology. So let's see. To start with Henry James Summermain. इनका इंट्रोडक्शन देखा जाए तो he was born in Scotland in 1822. He was lawyer by profession. They both were lawyers. He was lawyer by profession. He came to India to study primitive law, and he was also the Vice Chancellor of Calcutta University in 1869. If we talk about the publications, his first publication was Ancient Law, published in 1861, which was about evolution of law in Western world. Second is Early Law and Custom, published in 1883. Third is Village Communities in East and West, 1871. अब इनकी contribution की बात की जाए तो इन्होंने he was basically interested in evolution of law, how the primitive law evolved to the present one. Along with that, he also the family was originally patrilineal and patriarchal. He came to this conclusion by studying law. We will see. So first contribution was theory on the development family system from patrilineal to patriarchal. This is opposite to what E.B. Tyler said. E.B. Tyler believed that matrilineal society was the earliest form of society. While studying evolution of law, he used a technique same the method of reconstruction which E.B. Tyler used to study Mexican society. He told that the earlier form of law exists in the form of legal fiction in the present time. Thus, thus the survivals of early times when they were once functioning laws. इन्होंने कहा कि जो आज के टाइम पे लीगल फिक्शन है ना वो कभी ना कभी फंक्शनिंग लॉ थे इन द अर्लियर टाइम्स तो उन्होंने ये तो एज अ पार्ट ऑफ सर्वाइवल इसको पढ़ा कंसेप्ट ऑफ सर्वाइवल यूज किया सेम जैसे ईबी टायलर ने यूज किया था इन्होंने इसको स्टडी किया और अर्लियर लॉ के बारे अपनी थ्योरी दी कि पहले कैसे थे तो लीगल फिक्शन एक सर्वाइवल का काम किया उन्होंने और रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प की सेम एज ईबी टायलर इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि Roman law, the legal fiction prevails was that father has the absolute power over wife, children, servant, and even life and death. तो ये तो एक्सट्रीम पैट्रियार्की हुई अगर ये लीगल फिक्शन एक कल्चर में सर्वाइवल है तो ये कभी ना कभी कभी यही कंडीशन थी सोसाइटी में अर्लियर इन द अर्लियर टाइम्स एट द टाइम क्योंकि उस जब ये फिक्शन स्टडी किया गया उस टाइम पे ऐसी सिचुएशन नहीं थी सोसाइटी की तो इसका मतलब कि पहले कभी थी तो इससे ये कंक्लूजन पे पहुंचे कि पैट्रियार्की वाज द अर्लियर फॉर्म ऑफ फैमिली ऑर्गेनाइजेशन और उस वक्त में कोई ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल सिस्टम नहीं था ट्रू गवर्नमेंट नहीं थी तो इन द absence ऑफ दैट patriarchy was also the earlier form of political organization. He came to this conclusion. And next, in the course of time, groups began to unite. कॉमन लैंड होल्डिंग का कंसेप्ट आया टेरिटोरियल नोशंस भी थोड़े बड़े बट पेट्रिलिनियन किनशिप रिमेन द ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल अंटिल द डेवलपमेंट ऑफ नेशन जब नेशन डेवलपमेंट हुई तो कंसेप्ट ऑफ टेरिटोरियलिटी और स्ट्रेंथन हो गया जिसकी वजह से द रोल किनशिप प्लेड इन ऑर्गेनाइजिंग द सोसाइटी इट डिक्लाइंड वी विल सी इन द नेक्स्ट पॉइंट His next point was kinship had provided the basic principle of organization of primitive society. It means kinship was important in determining in what way the society will be organized. So the basic unit of ancient society will become family. Family उसका basic unit बन गई society का जो कि थी एक fixed status society थी. The horizontal and vertical mobility of individual was limited अगर थी भी तो बट इसके ग्रेजुअल डिसोल्यूशन की वजह से क्या हुआ इंडिविजुअल ओब्लिगेशन बढ़ गई जो कि पार्ट है जो कि एक कैरेक्टरिस्टिक है मॉडर्न सोसाइटी की thus the unit of modern society become individual
जब ये बन गया तो एक ये फ्री कॉन्ट्रैक्ट सोसाइटी इमर्ज हुई जिसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोबिलिटी बढ़ गई किसी भी इंडिविजुअल की। कोई फिक्स स्टेटस नहीं है जो कि हम आज की सोसाइटी में देख सकते हैं। नेक्स्ट इज द क्रिटिसिज्म। He had no knowledge of ethnography because he was a lawyer. In the absence of deep knowledge of races, इनकी थ्योरी को, इनके स्कीम ऑफ इवोल्यूशन को इतना यूनिवर्सली वैलिड नहीं माना जाता बिकॉज ही वॉज नॉट एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ही वॉज अ लॉयर। एंड फॉर गिविंग हिज थ्योरीज he had gone through books and reports rather than studying the society directly. इन्होंने कुछ बुक्स पढ़ी, रिपोर्ट्स पढ़ी और अपनी अपनी थ्योरीज दे दी। दैट्स व्हाई he was criticized. Now, next is John Ferguson McLennan. इनका देखा जाए इंट्रोडक्शन तो ये he was also born in Scotland in 1827. He was also a lawyer by profession. He was mainly interested in the evolution of institution of marriage. इनकी publication देखें तो his main publication was Primitive Marriage: An Inquiry into the Origin of Form of Capture in Marriage Ceremonies, published in 1865. He gave two terms in this publication: endogamy and exogamy. Second is Studies in Ancient History, published in 1876. अगर इनका contribution की बात की जाए, first is he was interested in reconstruction of social condition of primitive people. He mainly studied marriage, as we have seen. तो इन्होंने इनको अगर देखा हम तो तीन कंसेप्ट, तीन फील्ड्स में इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन था। फर्स्ट इज ही गेव द कंसेप्ट ऑफ ब्राइड कैप्चर। इसकी प्रैक्टिस एग्जिस्ट करती थी प्रिमिटिव सोसाइटी में, ये इन्होंने बताया कैसे, वो भी हम पढ़ेंगे। एंड द सेकंड कंट्रीब्यूशन इज ही आल्सो बिलीव दैट society proceeded from matrilineality to patrilineality, same as टेलर। ई बी टाइलर का भी यही मानना था। इन पर बट इनका ऑपोजिट था मानना। ये भी हम देखेंगे कैसे इन्होंने दिया पूरा, इसको भी इससे लिंक करेंगे। एंड थर्ड इज ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे में इन्होंने कुछ बताया कि कैसे स्टेट के आने की वजह से किनशिप रिलेशंस पे फर्क पड़ा। एंड लास्ट क्रिटिसिज्म देखते हैं कंट्रीब्यूशन में। फर्स्ट जो इन्होंने जब इन्होंने ब्राइड कैप्चर का बताया कि देयर वाज अ प्रैक्टिस ऑफ ब्राइड कैप्चरिंग, उसको इन्होंने प्रूव किया अगेन बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सर्वाइवल। इन्होंने फर्स्ट कहा कि जो अर्लियर सोसाइटी थी ड्यूरिंग सेवेजरी, द पीपल वर हंटर एंड गैदरर्स, ऑफ कोर्स वी नो दैट। तो हार्श कंडीशन थी उस वक्त में, स्ट्रगल वो फॉर सर्वाइवल, मुश्किल होता था सर्वाइव करना। और immature women were considered as burden due to subsistence economy। तो ये एक फंक्शनल नेसेसिटी बन चुकी थी। क्या? फीमेल इंफेंटिसाइड। ये प्रैक्टिस, दिस प्रैक्टिस वाज ऑन राइज। जब ये बढ़ती गई विद टाइम, दिस लेड टू अनफेवरेबल मेल फीमेल रेशियो। इसकी वजह से क्या हुआ? शॉर्टेज ऑफ ब्राइड। अब जब शॉर्टेज ऑफ ब्राइड हुआ तो प्रैक्टिस इमर्ज हुई ब्राइड कैप्चर की। इसका उन्होंने प्रूफ कैसे दिया? अगेन बाय स्टडिंग सर्वाइवल्स। उन्होंने कहा कि देखो, जो कलमुक्स पीपल हैं ये ब्राइड प्राइस पे करते हैं। जब इन्होंने स्टडी किया उस वक्त इन्होंने नोटिस किया कि ये लोग ब्राइड प्राइस पे करते हैं और फिर इनका एक रिचुअल है कि ये लोग लड़की को घोड़े पे ले जाते हैं एंड द गर्ल क्रिएट्स अ स्ट्रगल सीन। और ये सिर्फ एक मॉक रेजिस्टेंस होती है, कोई असली में वो नहीं कि स्ट्रगल करते हैं, वो सिर्फ एक रिचुअल है कि लड़की को ऐसे उठा के ले जाएंगे घोड़े पे और वो ऐसे रेजिस्ट करेगी। ये एज अ रिचुअल परसिस्ट कर रहा है उन उन लोगों में। और सेकंड उन्होंने दिया अमंग वेल्श, द ग्रूम एंड हिज फ्रेंड्स और ब्राइड फ्रेंड्स, इन दोनों के बीच में एक मॉक बैटल होता है अगेन एज अ रिचुअल, एज अ पार्ट ऑफ मैरिज रिचुअल, जिसमें कि पहले ही पता होता है कि जो ब्राइड के फ्रेंड्स हैं वो हार जाएंगे और ग्रूम और उसके फ्रेंड जीत जाएंगे और लड़की ले जाएंगे। अभी ये दोनों प्रैक्टिसेस हैं, ये सिर्फ एज अ रिचुअल अगर प्रेजेंट हैं तो कभी ना कभी ये रियलिटी थे। which points out that bride capturing was a practice in earlier times। तो इन्होंने ये
एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया कि ये प्रैक्टिस एग्जिस्ट करती थी। अब अगर थोड़ा सा आगे जाएं तो जैसे ही धीरे धीरे अनफेवरेबल मेल फीमेल रेशियो थोड़ी सुधरी और इन फीमेल इन्फेंटिसाइड कम हुआ विद एडवांसमेंट इन इकोनॉमी, एग्रीकल्चर इकोनॉमी आई जब, तो उसके बाद पॉलीएंड्री आई, वन वुमेन मैरिंग टू मैन। डायरेक्ट इसके बाद मोनोगेमी नहीं आया। अगर ये रेशियो सुधरी, इतनी नहीं सुधरी कि मोनोगेमी आ जाए, पॉलीएंड्री आया फिर। ये हम यहाँ पे देखेंगे पूरा, दोबारा एक्सप्लेन किया गया है। बट वन मोर पॉइंट बिफोर दैट, कि इस पॉइंट से हमें दो चीजें पता चलती हैं। देखो, एक तो अगर ब्राइट कैप्चर पे क्वेश्चन आ जाए वो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, कैसे कैसे, विद अ डायग्राम और ऑल्सो एग्जाम्पल्स एंड लिंकिंग इट विद द कंसेप्ट ऑफ सर्वाइवल। सेकंड, अगर सर्वाइवल पे क्वेश्चन आ जाए, सर्वाइवल, द कंसेप्ट ऑफ सर्वाइवल्स, तो इसके अंदर हमारे पास अभी तक तीन एग्जाम्पल हो चुके हैं। एक तो ईबी टाइलर जी का, हाउ ही यूज द कंसेप्ट ऑफ सर्वाइवल while studying Mexican society to reconstruct the cultural history of Mexican society। सेकंड, मेन का अभी पढ़ा हमने कि उन्होंने कैसे लीगल फिक्शंस को एज अ सर्वाइवल स्टडी किया, एंड ही केम टू द कंक्लूजन ऑफ पेट्रियार्कल एज द अर्ली सोसाइटी। और थर्ड, ये वाला मैकलेन का, इन्होंने कैसे सर्वाइवल, कल्चरल सर्वाइवल का यूज करके ये कंक्लूजन पे निकले कि ब्राइट कैप्चरिंग वाज अ प्रैक्टिस। तीन एग्जाम्पल, तीन स्कॉलर्स, तीन एग्जाम्पल, और साथ साथ में इनको प्रूव करने के लिए जो भी इन्होंने एग्जाम्पल्स दिए। नाउ द नेक्स्ट कम्स his belief that matrilineality preceded patrilineality, same as E.B. Tyler said। इन्होंने इसमें एक टाइमलाइन दी, टाइमलाइन क्या कि एक प्रोसेस बताई कैसे चीजें आगे गई। तो सबसे पहले थी सेक्सुअल प्रोमिस्क्यूटी, अनरेगुलेटेड सेक्स। तो इससे क्या होता था, इससे प्रॉब्लम आती थी, कोई रेगुलेशन नहीं थी, तो इट वाज इम्पॉसिबल टू रिकॉग्नाइज पैटर्निटी। कैसे पता चलेगा कौन किसका बेटा है? इसका सॉल्यूशन क्या था उस टाइम पे? किनशिप थ्रू फीमेल, ये तो पता चलेगा ना किसने किसको पैदा किया है। इट इज इजी टू रिकॉग्नाइज किनशिप थ्रू फीमेल। इससे क्या पता चलता है हमें कि शुरू में मैट्रिलिनियल डिसेंट था। द फर्स्ट स्टेज आ गई, मैट्रिलिनियलिटी एज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ सोसाइटी। अब इसके बाद क्या हुआ, यहाँ मैट्रिलिनियल डिसेंट से पॉलीएंड्री में जाते जाते इसके बीच में ब्राइड कैप्चरिंग हुई। यहाँ पे वो सिचुएशन बनी, द सबसिस्टेंस इकोनॉमी। तो ब्राइड कैप्चर इसके बीच में जब ये वाला सारा खेल हुआ, इसके बाद धीरे धीरे जब अगेन सेक्स रेशो ठीक हुई, मेल फीमेल रेशो ठीक हुई, फिर आया कि इन कोर्स ऑफ टाइम मोर रेगुलेटेड प्रोमिस्क्यूटी, थोड़ा रेगुलेशन हुई। एग्जाम्पल ये है पॉलीएंड्री का, जो कि यहाँ पे भी लिखा है। और पॉलीएंड्री में दो तरह, इन्होंने एक और चीज बताई कि पॉलीएंड्री दो तरह की होती थी, तिब्बतीन और फैटर्नल, वो वन जिसमें वन वुमेन मैरिज टू ब्रदर्स, जो कि इस टाइम पे प्रैक्टिस नहीं होती थी जब इन्होंने स्टडी किया। बट इसका एग्जाम्पल उन्होंने अगेन इससे दिया, द प्रैक्टिस ऑफ लेविरेट। इसको एज एविडेंस उन्होंने यूज किया टू प्रूफ एग्जिस्टेंस ऑफ पैटर्नल पॉलीएंड्री। कैसे? लेविरेट में क्या होता है कि व्हेन, इफ इफ द हस्बैंड ऑफ वुमेन डाइज, देन द younger brother marries her, marries the wife of his brother। तो ये इसको उन्होंने एज एविडेंस बताया, किसका? द एग्जिस्टेंस ऑफ पैटर्नल पॉलीएंड्री। सेकंड इज नायर और नॉन पैटर्नल। इसमें वुमेन मैरिज टू डिफरेंट मैन, ये आपस में रिलेशन नहीं होता इनका। जब ये कंडीशन आई, देन द सोसाइटी बिकम पैट्रिलिनियल। नाउ विद टाइम, जब एग्रीकल्चरल इकोनॉमी आ गई, तब फूड सप्लाई बढ़ गई, और सर्वाइवल के भी चांसेस बढ़ गए। सेक्स रेशो इवन आउट हो गई, मेल फीमेल रेशो was good enough। But with the agriculture, property became important।
प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट हो गई, सो does द इनहेरिटेंस, बिकॉज लैंड इज वेल्थ इन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी। अब प्रॉपर्टी जब इंपॉर्टेंट होगी और उसकी इनहेरिटेंस भी इंपॉर्टेंट होगी, तो पैटर्निटी आइडेंटिफाई करना और ज्यादा जरूरी है। इसका सोल्यूशन क्या निकाला? मोनोगैमी। इसका सोल्यूशन मोनोगैमी आया। वन वुमेन मैरिज वन मैन। क्यों? ताकि रिलेशनशिप बिटवीन चिल्ड्रन और पेरेंट इजीली आइडेंटिफाई किया जा सके। सो दिस इज द all the explanation which McLennan gave. Now third is origin। उन्होंने कहा कि मैक्लेनन ने कहा जैसे ही ओरिजिन ऑफ स्टेट हुआ, उससे प्राइवेट प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंस बढ़ती गई, जिससे क्या हुआ? किनशिप रिलेशंस में रिडक्शन आई, रिडक्शन ऑफ किनशिप रिलेशंस आउटसाइड न्यूक्लियर फैमिली। अगेन सेम पॉइंट जो मेन ने कहा था कि विद डेवलपमेंट ऑफ नेशन कंसेप्ट ऑफ टेरिटोरियलिटी और किनशिप जो हो गया एज ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल डिक्लाइन कर गया। सेम, दे वर ऑन सेम लाइंस ऑन दैट। इनका क्रिटिसिज्म क्या माना जाता है? और इन्होंने जब ये टर्म्स दी एंडोगैमी और एक्सोगैमी की अपनी पब्लिकेशन प्रिविटी मैरिज में, इन हिज आर्गुमेंट अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी वर नॉट क्लियर एट दैट टाइम। उनके आर्गुमेंट्स क्लियर नहीं थे। So Morgan explained it by saying that endogamy and exogamy were existing side by side. The clan was exogamous, you have to marry outside the clan, but at the same time, the whole tribe was endogamous. In tribe, there are multiple clans which are marrying outside the clan, but tribe is marrying inside the clan. That tribe was endogamous. No exogamy in tribe. अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मेन, हेनरी मेन, जॉन मैक्लेनन और मॉर्गन, ये हम आगे पढ़ेंगे, एच मॉर्गन, दे वर ऑन सिमिलर लाइंस ऑन सम कॉन्सेप्ट्स। पहली, इन तीनों की इवोल्यूशनरी स्कीम ने ओरिजिन ऑफ स्टेट का डिस्कशन हुआ है। इन्होंने भी इन्होंने भी स्टेट के बारे, ओरिजिन ऑफ स्टेट के बारे डिस्कस किया है, हमने पढ़ा भी है, अभी दोबारा पढ़ते हैं। इन तीनों ने कहा कि जैसे जैसे स्टेट की rise of state was accompanied by the decay of tribe and other kinship grouping। क्यों? क्योंकि importance of private property बढ़ गई थी, which led to the reduction of kinship relations outside the nuclear family। जैसे जैसे स्टेट की ग्रोथ हुई, प्राइवेट प्रॉपर्टी की इंपॉर्टेंस बढ़ी, उसके बाद कंसेप्ट ऑफ टेरिटोरियलिटी स्ट्रेंथन हुआ और ज़्यादा। ये पहले भी था पर और ज़्यादा हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि किनशिप एज अ ऑर्गेनाइजिंग प्रिंसिपल ये डिक्लाइन हो गया, इसका रोल डिक्लाइन हो गया। ये इस कंसेप्ट पे ये तीनों स्कॉलर्स सेम लाइन पे थे, इन तीनों ने सेम सेम चीज बोली है, इसको हम मेंशन भी कर सकते हैं, तीनों स्कॉलर्स का नाम along with their idea। So this is it for both the scholars। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रेजर एंड स्पेंसर। Till then, thank you very much। You can download this one pager from Telegram, link is in the description। Thanks a lot।